हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। कैसे हैं आप लोग? यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 इज ओवर एंड आई बिलीव दैट यू हैव रियलाइज्ड योर फुल पोटेंशियल ड्यूरिंग योर एग्जाम। सो जस्ट बी रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो, जिसमें हम इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड की ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिकली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो यू मे हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस एग्जाम that the question paper was bit easier and simpler than the last one. Questions were fairly distributed among the subjects. कुछ आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के कम क्वेश्चन हुए हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, फंडामेंटल क्वेश्चन थे, डूएबल थे। इस तरह अगर ओवरऑल देखें तो पिछली साल के बजाय क्वेश्चन पेपर जो स्टूडेंट से हमने बात की है उनको लग रहा है कि पेपर पिछली साल से कुछ ईजी था। If you see the polity and constitution, the number of questions which were asked from this section were 18. It is fairly a good number. 18 questions सिर्फ इस polity and constitution, core polity and constitution से पूछे गए। And if you put together all the questions related to polity and constitution, IR, social justice, governance, questions related to scheme, the total amount is 37. So 37 question is mainly from the syllabus which is in general studies 2 of your mains examination. So it is approximately 1/4 of your whole paper is from this sphere. Since the paper was easy and simpler than the last year question paper, it will obviously increase the cutoff and it will reflect in the increasing competition in the mains examination. So those who think that they are scoring good in this prelims should immediately start for preparing and practicing mains answer writing. And those who are skeptical about the result should also start preparing for mains and should not let in any negative thought until the result of prelims is out. So if we see the polity and constitution, 70% of the questions were based on basics, fundamental and facts. And the rest of the 30% questions drew their context from current affairs. So the students who were thorough with fundamentals, basics, read NCERT, followed current affairs throughout the year, could have easily marked the correct answer. I have personally gone through the paper and I have seen, as the last year, most of the questions from our classroom sessions, from our discussions in the classroom, and our notes. And I have talked to many students and they are very much comfortable in attempting this paper, especially my area, polity and constitution, because most of the things which were asked in the question paper were discussed by me in the classroom. At the end of the class, at the end of every class or any topic, we usually discuss previous year question related to that particular topic, whether it is prelims or mains. And this helped the student a lot. Apart from that, we regularly upload videos related to the current affairs on our YouTube channel. And they will definitely, because the content in those videos will definitely find place in the upcoming mains. So I recommend you to regularly watch those videos. They will help you immensely in your mains examination writing. So for now, let us start discussing about the questions which were asked in the polity and constitution section, the core polity and constitution. And they were about 18 questions from this particular section. So in this discussion, we will see the trend, we will see that how much questions were asked from which section, we will see what to do next, and we will also see that how to prepare for mains examination. Topics which are related to the questions which were asked in prelims examination or which was in news, like if you say ethics committee related question, which was very much expected that it will be asked in prelims examination or mains, or they may ask again in the mains examination. So we will discuss about these particular issues. So let us start with the first question.
So the first question is related to the Speaker of the Lok Sabha. Whether it is prelims or mains, Parliament shall always top the tally. Along with Parliament, fundamental rights is also an area from where UPSC asks question. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दो एरियाज में से आते हैं. इस बार पार्लियामेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए, फंडामेंटल राइट से कम क्वेश्चन देखने को मिले. और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोकसभा से शुरू होकर राज्यसभा, डिलिमिटेशन कमीशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कमिटीज़, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन, ये सब टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए. प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं. बेयर एक्ट से उठा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है. वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन. यहाँ तक पढ़ने के बाद आप देख लीजिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट. इस बार के पेपर में सबसे ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए, तो इस बार ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बारे में तो नहीं हुआ होगा. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर इज आर करेक्ट. इसको आप सर्कल कर लीजिए क्वेश्चन करने से पहले कि करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही शैल नॉट प्रिसाइड, he shall not have the right to speak, he shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. So the first statement is in line with the natural justice principle कि जिसके रिमूवल के प्रोसेस की बात चल रही हो वो प्रिसाइड कैसे कर सकता है. he shall not be presiding the house. so ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो सही है ही. अगर आप 96 आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 96 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो यूं का यूं यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया गया. आर्टिकल 96 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं. ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक. सो दिस इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि जिसके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, ही शुड हैव द राइट टू स्पीक. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. देन वी हैव he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. so इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इक्वलिटी ऑफ वोट के टाइम स्पीकर कब वोट कर सकते हैं और फर्स्ट इंस्टेंस में कब वोट कर सकते हैं. सो दिस इज द केस वे स्पीकर कैन वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस बिकॉज उनके रिमूवल की बात चल रही है. बट इन अदर केसेस लाइक कोई बिल के ऊपर कोई बात चल रही हो, डिस्कशन हो रहा हो, वोटिंग होनी है, उन केसेस के अंदर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते. उन सब केसेस के अंदर अगर इक्वलिटी ऑफ वोट हो गया पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, तब वो वोट कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दैट्स वाई आंसर इज 1 ओनली, दैट इज ए. नाउ इफ यू सी द आर्टिकल 96 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज क्लियरली मेंशन इन दिस आर्टिकल जो भी इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स पूछे गए थे. द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर मे अटेंड द प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट प्रिसाइड. दे हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स. ही शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन ही पूछा गया. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Which of the statements given above is are correct? The bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. तो हमने क्लास में डिस्कस किया कि लोकसभा देन राज्यसभा, एज यू ऑल नो द प्रोसेस, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट और उसके बाद ये नोटिफिकेशन होता है, नोटिफाई होता है, फिर ये एक्ट बनता है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो कि एक पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है, इस बार यूपीएससी में पूछा गया. इस क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते. इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि एक बिल के पास होने का प्रोसेस क्या है. और इस केस के अंदर जब लोकसभा, जो कि हाउस ऐसा है जो डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, तब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो बिल का फेट क्या होगा. इसके लिए हम हर क्लास के अंदर एक टेबल के थ्रू समझाते हैं कि सिनेरियो ये है तो क्या होगा. बिल पेंडिंग इन द लोकसभा एंड इफ द लोकसभा डिसॉल्व्स इट लैप्स. A bill passed by the Lok Sabha but pending in Rajya Sabha, it lapses. In all other cases, it do not lapse. ठीक है. Now let us see the statements.
द बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, ऑब्वियसली करेक्ट. Then a bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha. Again यहाँ से पास किया गया और यहाँ पेंडिंग है और लोक सभा अगर डिसोल्व हो गई तो ये बिल भी लैप्स हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग, कि अगर कोई इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है और वो बिल पहुंच गया है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने बोला कि इसको रिजोल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग, मतलब जो जॉइंट सिटिंग में ये फैसला होगा इस बिल का. और जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, हु विल प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ऐसे केसेस में अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाए तो वो बिल लैप्स नहीं होगा. मैंने बताया केवल 2 ही केसेस में लैप्स होगा, इसके अलावा किसी भी केस में बिल लैप्स नहीं होगा. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट सेज द बिल इन दिस रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई इंटेंशन टू समन द हाउस ऑफ ए जॉइंट सिटिंग लैप्सेस. सो ये गलत हो गया. तो केवल अगर आपको याद भी था कि 2 केसेस में लैप्स होता है, बाकी के किसी केस में लैप्स नहीं होता है, तो आप इसे सही कर सकते थे. सो द आंसर इज 1 and 2. अगेन आई एम सेइंग पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरुआत से लेके एंड तक पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पता होने चाहिए. मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. मेंस के अंदर थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस क्या है, कैसे होनी चाहिए, जो स्पीकर की पोजीशन है उससे रिलेटेड वो बायस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. या आप देखें जो पार्लियामेंट में एमपीज़ का सस्पेंशन हुआ उससे रिलेटेड, या एथिक्स कमेटी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी निशिकांत दुबे एंड महुआ मोइत्रा के कारण, उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया. हो सकता है मेंस में भी कुछ अलग तरीके से वो पूछा जाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को डिस्कस करना. प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आई वांट टू शो यू दैट previously in 2016 this question was asked. A bill pending in Lok Sabha lapses prorogation, ये prorogation से related था और ये डिसोल्यूशन से. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे. तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स. जितने भी 15 साल पुराने पेपर हैं वो तो आपको करने ही चाहिए. और ऐसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पिछली सालों से क्वेश्चन एग्जैक्टली या थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछ लिया गया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिट ऑफ प्रोहिबिशन. आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको सारे रिट्स के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए. 1-2 साल पहले मैंडमस के बारे में पूछा गया. प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू. प्रोहिबिशन जो रिट है वो कब ऑर्डर की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा. The government officer prohibiting him from taking action of a particular action. Parliament, Legislative Assembly pass a law on prohibition. Lower court prohibiting continuation of proceeding in a case, and the government prohibiting it from following an unconstitutional policy. तो यहाँ तो आप क्लियरली इसको हटा सकते हैं. पार्लियामेंट को ऑर्डर नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट कोई पर्टिकुलर लॉ पास करने के लिए. गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी. ऐसे केस में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, आर्टिकल 142, आर्टिकल 131, देर आर लॉट्स ऑफ टूल विद द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट दिस वन. रिट ऑफ प्रोहिबिशन इस काम में नहीं आती है. देन द गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के अगेंस्ट में ये रिट इशू नहीं होती है. द ओनली आंसर इज द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग continuation of a proceeding in a case. So the C is the answer. We have clearly discussed this in class. सारे रिट्स के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए. फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 25 and 26 एंड इवन फॉर मेंस दिस ईयर, उनको इस क्वेश्चन को कैसे देखना चाहिए. दे शुड नॉट लुक एट दिस क्वेश्चन लाइक रिट ऑफ प्रोहिबिशन देख लिया, आगे आपने उसको पढ़ लिया ढंग से, बट यू शुड कंपेयर दिस रिट विद अदर रिट्स कि बाकी रिट्स में क्या है, इस रिट के अंदर ऐसा क्या है. और हर 1-2 साल के बाद में रिट से ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. पिछली बार मैंडमस से पूछा गया. तो इसका आंसर होगा सी, जो कि हमने क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस किया, जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड और हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट, इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. इट इज़ नॉट इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज. अगर आप 2022 को देखें तो वहां आपसे मैंडमस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, क्वो वारंटो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया. तो आपको ये रिट्स पता होनी चाहिए. ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही नहीं करोगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स.
देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस बात से भी कि जो मणिपुर के अंदर कन्फ्लिक्ट हुआ, उस कन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न था वो था हाई कोर्ट का मैतेई ट्राइब के लिए कहना कि वो स्केड्यूल ट्राइब में आ सकते हैं नहीं आ सकते, इस बारे में डिस्कशन करना। तो तभी से आपको ध्यान होना चाहिए वो, मतलब एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड आस्क हाउ ए ट्राइब इज इंक्लूडेड इन स्केड्यूल ट्राइब, हाउ ए पर्टिकुलर ट्राइब इज डिक्लेयर एज ए स्केड्यूल ट्राइब। इसके अलावा भी न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है कि हिमाचल प्रदेश की एक पर्टिकुलर ट्राइब को स्केड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कर लिया गया, इस स्टेट में ये हुआ वो हुआ। तो SC ST से रिलेटेड, स्केड्यूल एरिया से रिलेटेड, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कि अगर कोई 6th शेड्यूल एरिया है तो उसका क्या मतलब है, 4 स्टेटमेंट में बताया गया। तो इस तरह से आपको ऐसी न्यूज़ जहाँ SC STs का कोई मामला है तो वो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बाद में पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। इसको आप 100% ऐसे सर्कल कर लें तो आपको पता रहे कि आपने करेक्ट आंसर ही देना है, करेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करना है। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स। इतना स्पेसिफिकली अगर यूपीएससी बोलती है तो थोड़ा थोड़ा स्केप्टिकल हो जाया करो कि ये क्यों ऐसा बोला है। रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल ट्राइब। अब एक बात बताओ, गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो स्टेट के लिए है। तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है क्या कि वो कोई ट्राइब को डिक्लेयर कर दे, रिकॉग्नाइज कर दे और वो फाइनल हो जाए? पहली बात तो यही आपको लग जाना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इट इज क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 कि प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर scheduled tribe, and article 366 the definition of scheduled tribe is given in article 342, मतलब 342 में जो scheduled tribe है वही सारी scheduled tribe है। तो 342 में president declares। बट इसका थोड़ा प्रोसेस अगर आप देखेंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किया या करंट अफेयर्स में भी कई बार डिस्कस किया, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ आती है तो हम उसके ऊपर कुछ करंट अफेयर वीडियोज़ बनाते रहते हैं, और उस वीडियो को बनाते वक्त हमें इतना टाइम मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर वीडियो बनाना है तो हम उसकी डेप्थ में जा सकते हैं आराम से। तो अगर इसे आप देखेंगे तो यहाँ आर्टिकल 342 के अंदर स्केड्यूल ट्राइब दे रखी है। द प्रेसिडेंट मे विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल डिक्लेयर द स्केड्यूल ट्राइब। उसके बाद अगर आप प्रोसेस को देखेंगे पूरा, उस प्रोसेस में एक मॉडलिटी है 1999 की। द प्रपोजल फॉर द इंक्लूजन मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी सीकिंग सच एक्ट। तो ये तो ठीक बात है कि एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल स्टार्ट द प्रोसेस। फिर वो प्रपोजल किसके पास जाएगा? यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। फिर वो किसको भेजेंगे? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसमें वो अगर फुलफिल होते हैं अप्रूव्स द इंक्लूजन। फिर ये प्रपोजल किसके पास जाएगा? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के पास। आफ्टर ओनली आफ्टर द कंकरेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे इंस्टीट्यूशन मिलके the proposal go forward for the cabinet being appropriate amendment in constituting scheduled tribe in order 1950. The final decision rests with the president office issuing a notification specifying the changes under the power vested in article 341 and 342. तो ये सारा पूरा प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। उस टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रखा था ये मैतेई कुकी के टाइम। और इसके अलावा भी आप पढ़ते हैं कहीं कि किसी ट्राइब को स्केड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया लिस्ट के अंदर, तो उस टाइम आपने गूगल कर लेना चाहिए कि कैसे होता है ये। आस्किंग वाई एंड हाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, द कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज एन स्केड्यूल ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन द अनदर स्टेट। ऑब्वियसली अगर कोई असम के अंदर कोई ट्राइब है स्केड्यूल ट्राइब में आ गई तो इसका कैसे मतलब हो सकता है कि लक्षद्वीप में भी वो स्केड्यूल ट्राइब में होगी, गुजरात में भी वो स्केड्यूल ट्राइब में होगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम कि वो ट्राइब है तो वो सारी स्केड्यूल ट्राइब हो जाएगी। तो इट मीन्स a particular tribe which is scheduled tribe in a particular state do not mean that it shall also be a scheduled tribe in another state. So the answer is
बी 2 इज करेक्ट। ठीक है, देन very simple question with reference to union budget consider the following statement the union finance minister obviously आप देखते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक बैग लेके आते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, बट यहाँ एक इश्यू है कि ये प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे नहीं आते हैं। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which deals with annual financial statement, it specifically says that president shall cause to lay annual financial statement before both houses। तो ये किसके बिहाफ पे आते हैं? प्रेसिडेंट के। ये क्वेश्चन आपने ठीक कर दिया होगा, बिल्कुल बात सही है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ हमें क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट। एट द यूनियन लेवल, क्योंकि यूनियन और स्टेट दोनों लेवल्स पे ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पूछा गया यूनियन लेवल का। No demand for grant can be made except on the recommendation of President of India. This is very much clear to almost all the student. आर्टिकल 113 के क्लोज 3 को अगर देखेंगे, इवन इफ यू डोंट नो द आर्टिकल, ये एक जनरल बात है, जब हम बजट को पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि द नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द आंसर इज बी। अब अगर देखें आप पिछली साल के क्वेश्चंस को, तो यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मनी बिल से क्वेश्चन हुआ, राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। देन डिमांड फॉर ग्रांट से क्वेश्चन पूछा गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू विल फ्रिक्वेंटली सी दीज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा, लोकसभा विल स्टिल प्रोसीड, कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जैसे ही आपने क्लास कंप्लीट की, और एज आई सेड अर्लियर ड्यूरिंग अ क्लास वी यूजुअली डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक विच वी हैव जस्ट फिनिश्ड। तो इस प्रैक्टिस के कारण ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये मैंने टॉपिक पढ़ लिया, इसके बाद मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया है, ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के अगर यूपीएससी विल आस्क फर्दर इन एनी एग्जाम, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस में भी अगर पूछेंगे, तो आपको थोड़े बहुत आर्गुमेंट आप प्रीलिम्स के स्टेटमेंट से भी सीख सकते हैं। और मेंस के आंसर के अंदर ठीक है बोल वचन चल जाता है कई बार, बट वहाँ भी आपको कुछ तो बातें पता होनी चाहिए ना एग्जैक्टली, कि ये सब बातें अगर आप लिखेंगे द राज्यसभा इज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, पार्लियामेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, और वो हम क्लास में करवाते हैं। ठीक है, देन द क्वेश्चन अबाउट अ बुक, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड व्हाई भारत मैटर्स। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यू माइट फाइंड इज ए क्रैश्ड एनोलॉजी, बट मेरे को जैसा लगता है कि एक बार बात काफ़ी डिस्कशन इस बारे में हुआ, इंडिया दैट इज़ भारत, कि भारत नाम होना चाहिए कि इंडिया नाम होना चाहिए, कि इंडिया दैट इज़ भारत होना चाहिए। तो यूपीएससी ने इन दोनों को उठा लिया, इंडिया भी होगा, भारत भी होगा, और मोदी जी भी होंगे। हालांकि ये बहुत ही डिस्टेंट एनोलॉजी हो गई, बहुत मुश्किल है ये ध्यान रखना, बट फिर भी अगर आपकी नज़रों के सामने से आ गई कोई ऐसी बात, तो आपको उसे याद रखना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन है कुछ ऐसे जो आपको लाइन के उधर या इधर कर सकते हैं। तो यहाँ से तो बिल्कुल इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस पिक्चर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये इनके हाथ में जो बुक है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स, ओबियसली ये इन्होंने लिखी है, तो ये भी इन्होंने लिखी होगी, सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, इसका आंसर ये था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, अगर आपको ये पता भी लग जाए कि ठीक है इंडिया दैट इज़ भारत के इशू से कुछ आया होगा, तो भी आप क्या कर सकते हैं अगर आपने नहीं जाना तो ये चीज़ें हैं जो आप अगर नहीं पता आपको तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन, जो बेसिक हम बातें करते हैं। देखो जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं इनिशियली, जब भी हम पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, तो हम क्या बात करते हैं कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके ये उसके चेयरपर्सन ये थे, उसके कमिटीज़ हैं उनके चेयरपर्सन ये थे। फिर हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतने पार्ट्स हैं, उसके अंदर इतनी स्केड्यूल हैं, उन स्केड्यूल में
7 शेड्यूल होती है, उसमें सब्जेक्ट होते हैं, हालांकि सब याद नहीं करते हैं, बट फिर भी वी विल गो थ्रू द सब्जेक्ट्स एट वंस बिफोर एग्जाम। आर्टिकल 21 बहुत ही मतलब, डू इट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक मेंशन कि आर्टिकल 21 को आपको पता होना चाहिए? आर्टिकल 368 मतलब एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 20, उसके अंदर एक ही आर्टिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द गेटवे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ऑब्वियसली इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड वी यूजुअली डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल इन द क्लासरूम। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट मे अमेंड any provision of the constitution by way of select the correct, by way of addition, variation, repeal. Again, if you go to the bare act, then article 368 provides nothing, notwithstanding anything in the constitution, parliament may in its exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, repeal. तो अगर आपने एग्जैक्टली इसको नहीं भी देखा है तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी होगा तो वो आर्टिकल 368 से होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोमा भी आपको लगाना है तो वो 368 के थ्रू ही होगा। तो उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेयर एडिशन वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे वेरिएशन भी हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें रिपील भी हुई हैं। इससे आप आंसर कर सकते हैं, द आंसर इज डी। इसका क्वेश्चन अगर 2022 में अगर देखें तो अगेन द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। अगर ये देखो, ये वाला जो पेपर है, ये जो आगे तैयार कर रहा है उसके लिए तो प्रीवियस ईयर हो गया, तो वो अगर इसको देखेगा तो केवल ये नहीं है कि 368 को पढ़ लिया चल दिए, आपको उससे रिलेटेड कुछ डायमेंशन को देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल लेके आया जाता है उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन और है, इस एस्पेक्ट में लोकसभा और राज्यसभा की पावर कैसे डिफरेंट है, किस तरह की मेजोरिटी यूज की जाती है, तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है। देन द क्वेश्चन इज अबाउट मनी बिल, अगेन पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, दिस इज अगेन वेरी एविडेंट एंड क्लियरली गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 109 के अंदर स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं रिलेटेड टू द मनी बिल, और आर्टिकल 1110 के अंदर मनी बिल के बारे में है, बट प्रोसीजर पहले दिया गया है 109 के अंदर। अगर आप आर्टिकल 109 को देखेंगे तो उसके अंदर ये सारी बातें लाइन टू लाइन लिखी हुई है। द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस in the council of state because there is no taxation without representation. लोक सभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, that because in लोक सभा the MPs are direct representative of people of the country, तो मनी बिल तो ऑब्वियसली वहीं से ओरिजिनेट होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा केवल लोकसभा के अंदर। ये सब बातें तो सही बताऊं आपको रट जाती हैं, ठीक है ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest change but cannot reject. Obviously it cannot reject. आर्टिकल 109 के अंदर सब बातें क्लियरली लिखी हुई हैं, तो ये दूसरा भी तीसरा भी सही हो गया। अमेंडमेंट्स टू ए मनी बिल, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ हमने सर्कल नहीं किया, बिल्कुल इसको भूलना मत, आप चाहे दूसरे पेन से कर लेना, क्योंकि इट विल अमाउंट you may lose 1 or 2 questions just because of silly mistake that you were not sure, that you didn't clearly read whether it is asking for the correct statement or the incorrect statement. तो ये चीज़, ये गलती मत करना। पहली गलती ये होती है, दूसरा आपने जो सर्कल करना होता है उसमें ए की जगह आपने बी कर दिया जल्दबाजी में, तो इस तरह की गलतियाँ मत करना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 1-2 क्वेश्चन से ही पूरा मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड। अब ये हैव टू बी एक्सेप्टेड क्या होता है? जब इतना आपको यहाँ से समझ में आ गया तो हैव टू बी एक्सेप्टेड क्या होता है बाय द लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सो द आंसर इज 1, 2 and 3, एंड इफ यू सी आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड द स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट टू द मनी बिल, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इस तरह की सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है।
Now again the next question is from the parliament again. How many delimitation commission have been constituted for the government of India till December 2023? delimitation commission मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हम कह रहे हैं कि 1971 के बाद में हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, उसके बाद भी हमारी टोटल सीट लोकसभा में 543 है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, और 2026 के बाद ऐसा होगा भी। तो डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में होती ही है, इसको आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि डिलिमिटेशन अगर सही नहीं होगी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में हुई अभी, तो 1952 से लेकर अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन हो चुकी है। 1952 सेंसस के बाद होती है, तो 1952 है, फिर 1963 है, फिर 1973 है। 1973 में इसको रोक दिया गया, 1973, 1952, फिर 10 साल बाद सेंसस होगा 1963, फिर 10 साल बाद सेंसस होगा 1973। इसको फिर यहाँ से बंद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। फिर एक हुई 2002 के अंदर। 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ उससे क्या हुआ, जो ये 543 सीट यहाँ फ्रीज की गई थी उसको तो चेंज नहीं किया, बट इंटर स्टेट, जो स्टेट्स के अंदर इंट्रा स्टेट जो बाउंड्रीज हैं उसको रीएडजस्ट किया गया। SC/ST की सीट हैं उसे बढ़ाया गया। तो ये सब चीज़ें की गई, इसको भी रीअरेंज किया गया कि किस एरिया के अंदर SC/ST ज़्यादा है तो वहाँ उस सीट को अलॉट किया जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ की गई 2002 के अंदर। सो ऑब्वियसली यहाँ आंसर 4 ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जो शुरुआत में डिलिमिटेशन हुआ था वो बाय इलेक्शन कमीशन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट इन 1950-51। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के अवार्ड से हुआ 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 के अंदर। तो ये सब बातें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द क्लास, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। और जब आप डिस्कस करते हो, आई वुड प्रेफर द वर्ड डिस्कस रेदर देन टीचिंग, तब आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे गए, बताओ। 7th शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, 8th शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, सेलेक्ट द करेक्ट। अब ये बताओ मुझे, आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आ गया, ये आप कैसे याद रखेंगे। अब इसका एक थ्रेड मुझे पकड़ में आता है केवल, हो सकता है आपको कुछ और पता हो, बट इसके अंदर क्या हुआ कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी लैंग्वेज है, इनको ऐड किया गया। तो आंसर तो देखो ये हो गया, आंसर इज 1 2 3। बट ये जो मणिपुरी लैंग्वेज है ना, इसको ऑफिशियली तो मणिपुरी बोलते हैं, बाकी इसको मणिपुर में मैतई लैंग्वेज बोलते हैं, मैतई। और मैतई का मुद्दा काफ़ी, आपको पता ही है, कुक्की और मैतई, अभी तक मणिपुर के अंदर वायलेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से, तो इट मीन्स आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि उससे रिलेटेड क्या हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब के इंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, सो यू मस्ट नो व्हाट इज द प्रोसेस टू इंक्लूड ए ट्राइब इनटू शेड्यूल ट्राइब। देन यू शुड नो, यू शुड थिंक कि अगर ये मैतई है, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ये हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है, वेदर दिस लैंग्वेज इन 7th शेड्यूल। हाउ एवर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू से दैट कि ये होना ही चाहिए, आपके दिमाग में आना ही चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपको मैथिली पता होता केवल, 4th अगर ये है कि नहीं है इसके अंदर, तो आप क्वेश्चन को कर सकते थे। बट ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेंगे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है। सो द आंसर इज ए। The next question is about party and its leader. So this is a question directly from NCERT, class 12th, chapter 2, name of book, India since independence, politics in India since independence. तो यहाँ से अगर आपने NCERT को भी देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान रखते हैं कि बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से स्कीम्स लेके आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो प्रिसीड किया था बीजेपी को जिसने, वो भारतीय जनसंघ था। तो पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आप, अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है, इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू।
यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे अर्चना नरेंद्र देव। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम 1977। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो कांग्रेस में थे तब तक वो, बट उसके बाद उनके इमरजेंसी के टाइम जो डिक्टेटरशिप थी या जो उनका काम करने का तरीका था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया, उससे नाराज होके बाबू जगजीवन राम ने अपनी अलग से एक पार्टी बना ली जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो जनता पार्टी के अंदर मिलकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। स्वतंत्र पार्टी फाउंडेड बाय सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी आप इसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता था इनका सोचना, तो इन्होंने एक लिबरल पार्टी बनाई हु फेवर्स कैपिटलिज्म, लिबरल राइटिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ो आप जाके, और इवन एनसीईआरटी तो पूरी ही पढ़ो आप, बहुत ही बेसिक बुक है, बहुत ज़रूरी है एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस की। अगर आपके पास 12th क्लास में अलग से बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ क्या है, पहला सही है बिल्कुल, तीसरा सही है, 2 गलत हो गए क्योंकि इन्होंने इस तरह से कर दिया इसको। सो द आंसर इज ओनली 2, और हमने इसे क्लास में डिस्कस किया वाइल डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन जनरल इलेक्शन, फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन। तो इसमें यहाँ बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिवाइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस विद नेहरू, किसान मजदूर प्रजा परिषद आचार्य कृपलानी, सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ सोशलिस्ट पार्टी था क्या, सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव भी इसके पार्ट थे, ठीक है। और यहाँ 53 पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टेड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और ये सारा रिजल्ट था। ये मैंने अभी इसके अंदर देखा तो इसमें पाया कि भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट वाज इन दिस स्लाइड, देन सोशलिस्ट पार्टी जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण, इसके साथ साथ हेमावती आचार्य नरेंद्र देव और मियानो मसानी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम बाबूजी, और स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी। तो ऐसा भी कई बार होता है कि आप थोड़ा सा टॉपिक से लेफ्ट राइट जाके चीज़ों को पढ़ें तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से इंडिकेशन आप ले सकते थे 2018 के पेपर से, जिसके अंदर पूछा गया इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ओपोजिशन वॉज द स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो पहला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। देन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ आपको क्लियरली पता हो तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज हो गए, आगे भी आपको ध्यान रखना है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 25 एंड 26, बी थरो विद द बेसिक्स लाइक parts in the constitution, their number, their name, schedule of the constitution, these are the basic thing. Powers of the municipality are given। तो ये जो हमारी क्लास होती है क्लास के अंदर सबसे बेसिक ये पढ़वाते हैं सबसे पहले कि भाई ये पहले तो ये याद कर लो तुम, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर ये पीसीएस की चीज़ें हैं तो सारी पार्ट पता होना चाहिए। अब देख लो क्या हो सकता है, बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर बताया गया कि भाई देखो कैसे कुछ पार्ट ऐड किए गए, 4A है, 9A है, 9B है, उसके बाद 14A है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आप कैसे याद रखेंगे, पार्ट A आपको पता होना चाहिए, पार्ट 10 आपको पता होना चाहिए और पार्ट 20 आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 14 के अंदर क्या होता है, 14 के अंदर आपके सिलेक्शन होता है और 15 के अंदर इलेक्शन होता है। 14 सिलेक्शन 15 इलेक्शन, इस तरह से कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। पार्ट 7 इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 7 इज नॉट देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 238 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो यहां से भी तो पूछा जा सकता था। सो पहली बात सही है बिल्कुल, दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है। पार्ट 20 के अंदर एक ही आर्टिकल है 368। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें। सो द डी इज द आंसर। और यहाँ ये फिर से ध्यान रखो करेक्ट पूछा गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया। देन वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम schedule 7th schedule which is related to the list, the union list, state list and concurrent list.
ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा लॉजिक से कर सकते हैं, इसके अलावा तो आप इसके अंदर आपके पास ऑप्शन केवल रिस्क लेने का ही बचता है। आप थोड़ा बहुत सोचें कि इंटरस्टेट ट्रेड के अंदर इंटरस्टेट जो मैटर है, कोई भी इंटरस्टेट मैटर है, वो स्टेट के पास कैसे हो सकता है। इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच की बात तो सेंटर के पास ही होनी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। बट ये इतनी सिंपल एग्जाम हॉल में नहीं लगती, आई नो दैट। बट फिर भी आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट स्केड्यूल्स को एक बार देख के जरूर जाएं। अब क्वारंटीन कब किया था, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, इंटरस्टेट क्वारंटाइन। इंटरस्टेट सारा मामला क्या है, यूनियन लिस्ट में है। और कॉरपोरेशन और इनकम टैक्स बार बार बोल के बताया, कॉरपोरेशन इनकम टैक्स बहुत बड़े टैक्सेस हैं, बहुत बड़े इनकम सोर्स हैं यूनियन के लिए, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये गलत हो गई, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी इज द आंसर। एंड इफ यू वांट टू सी द एग्जैक्ट नंबर, लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट 42, 81 एंड 85 आर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये तो एक ही साथ है, माइग्रेशन एंड क्वारंटाइन और कॉरपोरेशन टैक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन करेक्टली। Then the favorite question of UPSC, Article 21. Under which of the following articles of the Constitution of India the Supreme Court of India placed right to privacy? अब ये तो आपको आपके जहन में बस गया होगा। This is a crime under IPC if you don't know. Article 21 of the Constitution. Privacy is protected. Right emerging from Article 21 of the Constitution held by the Supreme Court in Puttaswamy case. And even if any other rights is to be innovated by the Supreme Court or is interpreted by the Supreme Court, it shall find place in Article 21, whether it is related to the environment or health or food or rights of prisoners or anything. ठीक है। और अगर आप देखें 2021 के अंदर राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, अगेन आर्टिकल 22. इफ यू सी 2019 one's right to marry under article 21. So this is how you should prepare accumulatively previous year question, some mock test, NCRTs, basic books, classroom discussion. तो ये सब बात करके करंट अफेयर सब चीज़ों को मिला के फिर बनता है आपका अच्छा स्कोर। Question number 100 is related to the ethics committee. Find the correct statement. Which of the following statements about ethics committee in Lok Sabha are correct? So ethics committee, as you all know, निशिकांत दुबे एंड मोहिया मुत्रा, क्या नाम है उनका, महुआ मोइत्रा, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है उसके पासवर्ड वगैरह उनको दे दी थी एलिजिडली। एथिक्स कमेटी के पास उनकी जो शिकायत है, कंप्लेंट गई थी, उसके बाद एथिक्स कमेटी काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट दे शैल आस्क क्वेश्चन और एथिक्स कमेटी। अब बात इतनी होती है कि जब आपको पता भी लग जाए कि ये टॉपिक न्यूज़ में है तो आप उसके बारे में कितना सर्च कर पाएंगे। दैट्स वाई आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द करंट अफेयर्स वीडियोज़ वी रेगुलरली अपलोड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. They will immensely help you in your prelims exam and definitely in your mains exam. So it was initially an ad hoc committee. देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डिसीजन हुआ कि हमारे को एक एथिक्स कमेटी चाहिए जिसका काम प्रिविलेज कमेटी करती रहती है, उससे काम नहीं चलने वाला। और ये इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे को एक एथिक्स कमेटी चाहिए, किसके लिए, to regulate the conduct and morals of our honorable representatives. But anyhow 1997 के अंदर हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे KR नारायण, उन्होंने राज्यसभा के लिए एक कमेटी बना दी जिसके अंदर 10 मेंबर हैं। बट इट वॉज पोस्टपोन्ड फॉर लोकसभा, और 2000 के अंदर स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज GMC Balyogi. Again, he was also related to TDP चंद्रबाबू नायडू, उनसे संबंधित वो थे, स्पीकर थे उस समय 2000 के अंदर। उन्होंने ही कंस्टिट्यूटेड एन एड हॉक कमेटी, एथिक्स कमेटी अंडर हिज चेयरमैनशिप। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक कंप्लेन, ओनली लगा हो तो थोड़ा सोच लिया करो।
रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ था 2015 के अंदर, जो रूल्स ऑफ लोकसभा है उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट में एथिक्स कमेटी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं, कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है, बट ये है कि जो द पर्सन अदर देन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट shall have to give an affidavit with the complaint, जिसके अंदर ये पता हो, उसमें लिखा हो कि भाई जो मैंने रिपोर्ट की है, कंप्लेन की है, ट्रू है, फॉल्स नहीं है, उसका खुद का एफिडेविट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एफिडेविट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एनीबडी कैन कंप्लेन, ये लिखा है एनीबडी कैन कंप्लेन। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर्स विच इज सब्जुडाइज। ऑब्वियसली जो कोर्ट में इशू है तो उसको तो ये मैटर को नहीं लेगी, और कोर्ट ही इसको देखेगा, फिर कोर्ट का फैसला जो भी होगा उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। सो इफ यू सी द रूल्स ऑफ लोकसभा रिलेटेड टू एथिक्स कमेटी एज पर द अमेंडमेंट ऑन 12 अगस्त 2015, 233A इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन और मेंबर मे मेक कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड इफ अ कंप्लेंट इज मेड बाय एनी पर्सन इट शैल बी फॉरवर्डेड बाय मेंबर। कमिटी ऑन एथिक्स शैल नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब्जुडाइज इन द कोर्ट। सो the answer is C 1 and 3. Answer is C 1 and 3. This is wrong. Then we have a question on Northeastern Council. See, if you see the Lakshmikant book, they in the chapter interstate relation, they gave just a passing reference to the Northeastern Council at the end of the chapter, और यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन बना दिया, जिसे हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था क्लास के अंदर, और बच्चे काफ़ी खुश हैं इस क्वेश्चन को देख के, उन्होंने इसे कर दिया सही। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एस्टेब्लिश बाय नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट इन एनईसी 2002। अगर ये बात आपको ना भी पता हो और आज का आप उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आप इसको सही कर देंगे। द काउंसिल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, करेक्ट, अभी तक इनकरेक्ट नहीं आया एक भी। गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑब्वियसली होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर नहीं होंगे। 2002 के अंदर इसके अंदर जो ये अमेंडमेंट हुआ था इसमें सिक्किम ऐड हुआ था और होम मिनिस्टर हटा दिए गए थे। तो ये बात आपको पता है तो आप कर सकते हैं। बाकी जो जोनल काउंसिल है वहाँ से जो भी मेंबर्स तो एग्जैक्टली वही होते हैं, बट वहाँ पे होम मिनिस्टर के चेयरपर्सन होंगे जोनल काउंसिल के अंदर। तो जोनल काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, अगर फेडरल की बात करें, फेडरल इश्यूज़ की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन यही है बस इस बार, फेडरलिज्म से, पंचायती राज से, जुडिशरी से, जुडिशियल एक्टिविज्म, और जो बेसिक फिलोसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है जैसे लिबर्टी, डिग्निटी, राइट्स के ऊपर फिलोसफिकल क्वेश्चन, ये सब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, जो पिछले 1-2 साल में देखे गए वैसे क्वेश्चन नहीं थे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, so this was discussed in the class. Members of North Eastern Council are governors of the state, chief minister of 8 member states. Sikkim was added in 2002 by amendment. Chairman कौन होंगे? Nominated by the president. Vice chairman होंगे nominated by the president. Home minister shall not be the chairman of North Eastern Council. 3 members planning expert nominated by the president of India. So this is clear. यहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, होम मिनिस्टर नहीं होंगे। So answer is 1, 2 and 3 only. तो अगर आपने क्लास में अच्छी तरह से ध्यान दिया है, नोट्स को रिवाइज किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देन अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी तक हमने इनकरेक्ट नहीं देखा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ज़्यादा पूछेंगे, तो ये कन्फ्यूजन तो नहीं था इस बार। देखिए पार्लियामेंट में इनमें सेशंस के बारे में पूछा गया। वी यूजुअली डिस्कस इन द क्लास 4 तरह की टर्म्स होती हैं, प्रोरोगेशन, एडजॉर्नमेंट, पहले एडजॉर्नमेंट, साइन डाई, देन प्रोरोगेशन, देन डिसोल्यूशन। सो ये किसके एम्बिट में होते हैं? स्पीकर ऐसा कर सकता है, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाई। प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन इज विद इन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सिटिंग को एडजॉर्न कर दिया गया और बता दिया गया कि टिल दिस टाइम हाउस इज एडजॉर्न। साइन डाई अगर हो तो मतलब उसमें फर्दर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया, और साइन डाई के जस्ट बाद में प्रेसिडेंट इसको प्रोरोग करते हैं हाउस को। और प्रोरोगेशन का मतलब सेशन का एंड होना, अब नेक्स्ट सेशन में हाउस मिलेगा। और डिसोल्यूशन का मतलब या तो लोकसभा मैच्योर हो गई हो, 5 साल हो गए, तब उसे डिसोल्व किया जाएगा, और अर्लियर भी उसे किया जा सकता है इन सम केसेस।
So the first statement is prorogation of House by the President of India does not require the advice of Council of Ministers. As you all know, we have parliamentary form of government, and in a parliamentary form of government, President shall act on aid and advice of Council of Ministers. It is mentioned in the Constitution in Article 75. So ये statement गलत हो जाता है because President acts on the advice of Council of Ministers. Prorogation of House is generally done after the House is adjourned, sine die, but this is no bar to the President of India prorogating House which is in session. तो प्रोरोगेशन मैंने बताया साइन डाई के बाद में किया जाता है, बट दिस इज ए कन्वेंशन. इसके इस बात को लेके प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो केवल साइन डाई के बाद ही प्रोरोग करते हैं, वो पहले भी कर सकते हैं. देन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Then about dissolution. Dissolution of Lok Sabha is done by the President of India, correct? Who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of Council of Ministers. Obviously, he do so on the advice of Council of Ministers, but अगर Council of Ministers के पास लोकसभा की मेजोरिटी ना हो, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, ऐसे केस में माइनॉरिटी गवर्नमेंट के कहने पे प्रेसिडेंट डिसोल्व नहीं करेंगे. नाउ इट बिकम्स द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. और अभी जैसे कोलिजन गवर्नमेंट है, तो कोई भी कोलिजन या कोई भी ग्रुप अगर मेजोरिटी प्रूव ना कर पाए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो प्रेसिडेंट उसे डिसोल्व कर सकते हैं एट हिज ओन डिस्क्रिशन. तो ये स्टेटमेंट सही है. सो द आंसर इज 2 and 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वेरी सिंपल क्वेश्चन. टेम्परेरी और प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर. बिफोर द राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर. सो ये हम जनरल डिस्कस करते रहते हैं. जो पहली क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो पूरी इसके ऊपर जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. यूजुअली जो स्टेट पीसीएस हैं वो ये पूछती हैं, बट इस बार इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए. सो इट्स आंसर इज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. और ये हमने क्लास में अच्छी तरह डिस्कस भी किया था. फर्स्ट मीटिंग कब हुई, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर. और फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करके हमने इनको क्या बनाया था, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट. फर्स्ट स्पीच बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट टू द असेंबली. तो यहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे. देन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स. यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है. 1909, 1919, 1935, 1947. ये कुछ एक्ट्स हैं. 1933 पिछली बार पूछा गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था. ठीक है, तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये सारे एक्ट्स याद होने चाहिए. बट दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, एज यू ऑल नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोज ऑलमोस्ट 60 to 70% कंटेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. तो इस एक्ट के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए. फेडरेशन की यहाँ पे बात हुई थी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एज यू ऑल नो. सेकेंड स्टेटमेंट माइट बी कन्फ्यूजिंग बिकॉज अभी जिस तरह से आपको लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या है, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है. यूनियन जो लेजिस्लेचर है हमारा, यूनियन लिस्ट को अगर देखेंगे 7th शेड्यूल के अंदर, तो वहाँ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है. बट दिस वॉज नॉट द केस इन 1935 बिकॉज दिस पावर वॉज विद गवर्नर जनरल. उस समय कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो थी नहीं. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. सो द आंसर इज ए. सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, सिंपल थे. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको सोचना हो सकता था, जैसे स्केड्यूल के अंदर क्या सब्जेक्ट हैं वो दिए हुए, तो वो आपको याद नहीं होते हैं, बट उसे भी आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो कर सकते हैं. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ थे. बाकी एक बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था डॉक्टर जयशंकर वाला, तो वो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हो गए होंगे कि क्या करना चाहिए इसके लिए. तो कुछ क्वेश्चन स्किप भी करने चाहिए जो बहुत ही आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं पता इनके बारे में, तो आप ऐसा कर सकते हैं. सो ओवरऑल हमारे क्लासरूम से लगभग सारे क्वेश्चन आए हैं. जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू है उसका तो क्या कर सकते हैं, बट अगर आपने क्लास के डिस्कशन को अच्छी तरह सुना है, नोट्स को रिवाइज किया है, बेसिक करंट अफेयर पता है, और जो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही चाहिए. इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन, जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो क्वेश्चन अब आते हैं. और जो 11th क्लास की बुक है पॉलिटिकल थ्योरीज,
वो भी आपको पता होने चाहिए। पिछले 2-3 साल से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे, इस बार वहाँ से क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट बार हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम किसी एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी करंट अफेयर रिलेटेड हम यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे while writing mains answer. So I recommend you to go through them regularly. See you in the next class. Bye bye. Thank you.